So hello everyone, today we will learn simple present tense, but before we learn we must understand that tenses overall if we see it gives us the time of an action, means at what time does that action occur, at what time does the action happen, उसके बारे में हमें टेंसेस बताते हैं. जैसे कुछ एक्शन जो है वो ऑलरेडी हो चुके हैं, कुछ एक्शन है वो होने वाली है, कुछ एक्शन अभी फिलहाल हो रही है, तो कौन से टाइम पे एक्शन हुई थी या हो रही है या होगी. तो ये सब बताने के लिए, द टाइम ऑफ एक्शन बताने के लिए टेंसेस का यूज़ किया जाता है. एंड वो टेंसेस जो है वो किसके थ्रू हम बता सकते हैं. सो वी कैन जस्ट यूज द वर्ब्स, वर्ब फॉर्म्स. ओके, लाइक वी हैव गो, गोज, वेंट, going, go on. So different kind of verb forms are used along with some helping verbs or to be verbs. So altogether it just makes a clear sense that this action was happened at this time or this action will happen in the future. So this is what you have to understand. Second thing is very important also. It is also very common thing to understand all the types of sentences, all the types of tenses, that you must know the use. Two things are important: uses and its verb forms. So we must understand that in order to learn any tense, we must be very clear with the uses of that particular tense. यानी कि कौन सी सिचुएशन में उसका यूज होता है वो पता होना चाहिए, और उसके करेक्ट वर्ब फॉर्म्स. अगर इसमें गलती करोगे तो सही टेंस नहीं पकड़ पाओगे, और इसमें गलती करोगे तो ग्रामेटिकल मिस्टेक जो है वो कहलाएगी और मार्क्स गवा दोगे. एंड मीनिंग ऑल्सो विल नॉट बी कन्वेड, ओके, एज यू वांट टू. So as far as simple present tense is concerned, we have these 8 uses. Okay, so one by one we will see all this with examples. And the verb forms we use in simple present tense are V1 or V1 plus S or ES. Okay, in assertive sentence we use either V1 or V1 plus S or ES. तो ये S और ES कब लगता है? So when the subject is he she it, तो उस टाइम पे हम S या ES लगा देते हैं V1 के पीछे. Like I go but he goes. When he she it comes as the subject, we add S or ES. तो जब S डबल एस एस एच सी एच ओ एक्स इस तरह का कुछ वर्ब के पीछे आता है तो हम ES लगाते हैं, वरना S लगाते हैं. That we will see in the example next. And in interrogative negative we can't use this. We have to use do or does plus V1. Okay, the same thing here also. You can see ES. तो आप यहाँ पे भी he she it के साथ does का यूज करोगे, बाकी के साथ do का. And make sure that with do or does we always use V1. Don't make mistake. Many of students are making mistake. They are using here also they use does, and then again they use here S or ES. So that is wrong. Okay, so make sure that with do does always use V1. And these are two action verbs. Here we can see some to be verbs: is, am and are. They are also used to show present simple. And some helping verbs like has and have, we can use this also. तो have और has में से has जो है अगेन वो s पीछे दिख रहा है तो वो he she it के साथ हम उसको यूज कर सकते हैं. बाकी के साथ have, I have, we have, you have, they have, he has, she has, it has. Okay, so now let us start with the first use, habitual actions. So as far as habitual actions are concerned, we can see this. देख, कोई भी बंदा जो है, किसी को चलने जाने की आदत है, किसी को वॉक पे यानी किसी को ब्रश करने की आदत है, किसी को हर रोज ये पेपर पढ़ने की आदत है, तो ये सारी जो है हैबिचुअल एक्शंस है. ओके, आई गो फॉर अ वॉक डेली. सो दो चीजें मैंने बोली थी, एक तो उसका यूज, कौन सी यूजेज, एक तो हैबिचुअल एक्शन. तो आई गो फॉर अ वॉक डेली तो वो मेरी आदत है भाई, तो वो एक ये हो गया, यूज हो गया. और उस यूज के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे तो वर्ब फॉर्म कौन सा यूज करेंगे? एक्शन वर्ब है तो V1 या S और ES. तो यहाँ पे सब्जेक्ट आई है तो ऑब्वियसली हम V1 यूज करेंगे, तो हमने गो यूज किया. अगर हम यहाँ पे ही लेते तो हम क्या यूज करते? ऑफ कोर्स we would have used goes. Okay, so I go and he goes. So I go for a walk daily, this is simple present tense, it shows habit. He brushes his teeth after his meals, this is this boy's habit. Okay, so it is in simple present tense, and as the subject is he, we are using ES. मैंने कहा था जैसे S डबल एस एस एच सी एच ओ एक्स ऐसा कुछ आता है वर्ब के पीछे, तो हमें क्या यूज करना है? ES यूज करना है. ऑलराइट, माई फादर रीड्स न्यूज़पेपर एवरी डे. अगेन हियर माई फादर मीन्स ही, तो यहाँ पे हम रीड के पीछे S लगाएंगे. ये सारी तीनों के तीनों क्या दिखा रहे? हैबिट दिखा रहे.
तो ये पर्पज हुआ। ओके, इस सिचुएशन में हम सिंपल प्रेजेंट यूज करेंगे और ये V1 या तो V1 के बाद S और ES हम वर्ब फॉर्म का यूज करेंगे। नेक्स्ट वी यूज इट फॉर रिपीटेड एक्शंस। So the actions which are repeated, either they are repeated regularly or sometimes or occasionally or often. Okay, so as per this words you can just make out कि कोई एक्शन जो है कभी कभी समटाइम्स होती है, कोई एक्शन ऑफन मतलब काफी बार होती है, कोई एक्शन ऑलवेज हमेशा होती है, कोई एक्शन नेवर 0% होती है उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इस तरह से वी हैव मेनी फ्रीक्वेंसी शोइंग वर्ड्स लाइक ऑलवेज, एवर, नेवर, डेली, रेगुलरली, समटाइम्स, often, usually. Okay, so occasionally, all these are the words which show us the frequency, or you can say the actions which are repeated at what time, after what time period. तो ये जो सर्कल किए हुए वर्ड्स है ऑफन, समटाइम्स, ऑलवेज, ये फ्रीक्वेंसी दिखाते हैं, रिपीटेड एक्शंस के लिए यूज होते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में ऐसे ब्लैंक दी जाए और यहाँ पे इस तरह के वर्ड्स कुछ आपको मिल जाए देखने, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट एज इट इज शोइंग फ्रीक्वेंसी, इट इज फॉर रिपीटेड एक्शंस। एंड रिपीटेड एक्शंस किस में आते हैं? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सो एज पर दैट वी विल चूज द वर्ब फॉर्म। तो यहाँ पे माई सिस्टर है, तो माई सिस्टर शी, तो शी के साथ एस और एस, तो वी हैव यूज्ड मेक्स। ओके, यहाँ पे माई सिस्टर की जगह माई सिस्टर्स होता प्लूरल, देन वी वुड हैव यूज्ड मेक ओनली। और यहाँ पे कुछ भी अलग आई होता तो भी मेक होता। ठीक है, तो यहाँ पे माई सिस्टर यानी शी है, इसलिए हम लोगों ने एस और एस यूज किया। ओके, सेकंड एग्जांपल ऑफ रिपीटेड एक्शन, और साइंस टीचर समटाइम्स टेक्स अस टू द लैब। तो कभी कभी हमें लेके जाते हैं, तो फ्रीक्वेंसी कैसी है? कभी कभी की। ठीक है, तो ये भी रिपीटेड एक्शन के अंदर आ गया, और यहाँ पे साइंस टीचर में भी ही और शी, तो उसके रिलेटेड यहाँ पे टेक्स लिखा है वर्ब फॉर्म। थर्ड इज आई ऑलवेज स्टडी इन द मॉर्निंग। सो हियर द सब्जेक्ट इज आई एंड दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड V1। ओके, ये भी एक मेरी रिपीटेड एक्शन के कि हर रोज मैं मॉर्निंग में पढ़ती हूँ, ये रिपीटेड एक्शन है, एवरी डे इट जस्ट गेट्स रिपीटेड। The next use of simple present tense is it shows the general truth. It may be related to science, mathematics, geography, or nature. Nature means five natural element as well as the nature of लिविंग बींग्स। ओके, यानी कि कुत्ते का नेचर क्या होता है? भौंकना। शेर का नेचर क्या होता है? तो दहाड़ना। तो इस तरह से नेचर, फूल का नेचर क्या होता है? तो खुशबू बिखेरना। ठीक है, तो इस तरह के नेचर जो है उसको भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर ले सकते हैं। और फैक्ट, जो भी फैक्ट है, ट्रूथ है, चाहे वो कोई भी फॉर्म में हो, समटाइम्स वी कैन से दैट कुछ स्लोगन्स होते हैं, कोट्स होते हैं, कहावतें होती है, तो वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आती है। ओके, so let us see the examples of general truth. The first one is the sun rises in the east. So this is a fact. Everyone will admit it कि हाँ ये तो भाई सही है, truth है ये। तो this is simple, this is general truth. Okay, universal truth. So we have to just use simple present tense for that, and that's why as a subject is the sun, that means it. तो हमने यहाँ पे s लगा दिया, rise के पीछे s लगा के rises लिखा है। तो he she it के साथ एस और यस लगाते हैं, तो सन इट है तो राइजेस लगा दिया, तो द सन राइजेस इन द ईस्ट। द सेम वे द लाइट ट्रेवल्स स्ट्रेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लाइट जो है वो तो सबको पता है कि अगर हम टॉर्च लेते हैं, बैटरी यूज करते हैं मोबाइल की टॉर्च, तो उसमें लाइट सीधी जाती है, कभी zigzag या आड़ी टेढ़ी नहीं जाती। ठीक है, तो ये तो प्रकाश की गति का नियम है। तो ये जो है ये साइंटिफिक फैक्ट है। तो ऐसे साइंटिफिक ट्रूथ के लिए, फैक्ट्स के लिए कुछ प्रिंसिपल्स, फॉर्मूलाज जो होते हैं उसके लिए भी हम जनरल ट्रूथ कहेंगे, और वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखा जाएगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यहाँ पे लाइट मीन्स इट, सो विल बी यूजिंग एस आफ्टर ट्रैवल। ओके, देन वी हैव ट्रायंगल हैज 3 साइड्स। अभी यहाँ पे ये दोनों में एक्शन वर्ब्स यूज हुए थे, राइज होने की एक्शन होती है, ट्रैवल करने की एक्शन, बट यहाँ पे विल बी यूजिंग हेल्पिंग वर्ब्स। See, a triangle has 3 sides. So 1 side, 2 side and 3 sides. So triangle has 3 sides. It's a mathematical fact. Okay, truth है। तो यहाँ पे हमें कोई एक्शन नहीं दिखानी है, बट वी विल यूज हियर हेल्पिंग वर्ब्स। और यहाँ पे हैज क्यों लिया, हैव क्यों नहीं लिया? बिकॉज ट्राइंगल मीन्स इट, सो विथ ही शी इट अगेन विल बी यूजिंग हैज। ओके, एंड द फोर्थ इज काव इज अ यूजफुल एनिमल। सो ये तो फैक्ट है, एवरीवन बिलीव्स सो, बिकॉज उसके दूध ही नहीं पर दूध से लेकर गौमूत्र, उसका जो गोबर होता है वो भी यूज होता है। ठीक है, तो ये तो फैक्ट है कि भाई ये काव जो है वो ट्रूथ अपना यूजफुल एनिमल है। तो यहाँ पे हमने कौन सा वर्ब यूज किया है? इज एम आर भी यूज कर सकते हैं, एज आई सेड यू कि टू बी वर्ब्स है,
तो हम एक्शन वर्ब्स यूज कर सकते हैं V1 और V1 प्लस एस और एस। हम अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो डू डस प्लस V1 यूज करते हैं। अगर हम हेल्पिंग वर्ब को यूज करना चाहे हैज है तो उसको भी कर सकते हैं। और कभी कभी हम टू बी वर्ब फॉर्म्स इज एम आर को भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। ओके, तो ओवरऑल ये जो एग्जांपल्स है सारे किसके हैं, जनरल ट्रूथ के। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही हम लिखते हैं जनरल ट्रूथ्स। The next is commentary. When you are watching any cricket match or football match or any other match, so the commentators gives the live commentary. So there also he uses simple present tense only. He just speaks like this. Dhoni whips the ball straight in the mid wicket fielder and tries to take a cheeky single. ऐसा बोलते हैं ना. तो to give commentary also we use simple present tense. So here you can see whips and tries. एस या एस और एस लगाया है, क्यों? बिकॉज बात हो रही है, सब्जेक्ट है धोनी, धोनी मीन्स ही, तो मेल है, तो मेल के बारे में, ही के बारे में बात करते हैं तो एस। तो यहाँ पे एस लगा दिया और यहाँ पे क्या किया, ट्राई टी आर वाई आता है, तो वाई के आगे आर कॉन्सोनेंट है, तो वाई के आगे जब कॉन्सोनेंट आता है और हमें ईएस लगाना होता है तो हम क्या करेंगे, वी विल कन्वर्ट वाई इनटू आई एंड देन वी विल ऐड ईएस, लाइक ट्राई ट्राइज, क्राई क्राइज, फ्राई फ्राइज, ओके एंड सो ऑन. So these are the rules of adding es. As I had said you कि s डबल एस 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 सी एच ओ एक्स जेड आता है तो es लगाएंगे. उसी तरह से y के पीछे आगे कॉन्सोनेंट आता है तो y का i कन्वर्ट करके es लगाएंगे. The next use is in some exclamatory and imperative sentence also we can use the verb form of the simple present tense. तो V1 और ये V1 प्लस s और es है, तो ये दोनों verb form को हम exclamatory sentence और imperative sentence में भी यूज कर सकते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल, देयर गोज योर सिस्टर एक्सक्लेमेशन मार्क. तो ये जो है वंडर, आश्चर्य के लिए यूज किया गया है, पर यहाँ पे जो वर्ब फॉर्म लिया गया है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का लिया गया है, दो इट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. द नेक्स्ट इज ओपन द डोर. सो इट इज एन इंपरेटिव सेंटेंस वेयर वी आर गिविंग द ऑर्डर or sometimes we make request, we give suggestion. Okay, so in imperative sentences also the first word is mostly the verb, okay, or else sometimes we add please before the verb, or sometimes when we are giving negative command we use don't before the verb, but we have to use the V1 form in all the imperative sentences. So V1 or V1 plus S or yes किसके verb form है, simple present tense है. Okay, so this is also one of the use. And then next is to introduce quotation. So kids says a thing of beauty is a joy forever. तो ये जो है किड्स जो है इज द जॉन किड्स इज द वेरी फेमस नेचर पोएट. ओके, सो ही सेज दैट ये, तो ये क्या है, ये कोटेशन मार्क है. ये कोटेशन मार्क के बीच में ये जो है वो डायरेक्ट स्पीच है, हम रिपोर्टेड स्पीच पढ़ते हैं उसमें. तो इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने किसका यूज किया, इसका. ये क्या है, वर्ब है. कौन सा वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि यहाँ पे किड्स यानी ही, तो हमने सेज लिखा. अगर बहुत सारे पोएट्स होते हैं तो हम से लिखते हैं, से वाई. और ऐसा जरूरी नहीं है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज किया जाता है. वी कैन जस्ट राइट डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच यूजिंग सिंपल पास्ट टेंस आल्सो, सेड, even simple future, shall say, will say, even present perfect, has said, or many other. But this is also one of the uses, okay, which we can use. And now after that we have the future events. अगर आपको मान लो कि शाम को 6 बजे दिल्ली जाना है और दिल्ली जाने के लिए एक ट्रेन है शताब्दी एक्सप्रेस, तो यू आर आस्किंग एट द विंडो, टिकट विंडो, और एल्स यू आर आस्किंग टू समवन एल्स कि भाई ये ट्रेन कितने बजे जाती है. सो ही विल से दैट द ट्रेन लीव्स एट 6 PM. सो राइट नाउ इट इज नॉट 6 PM. ओके, अभी तो देर है, अभी तो 3 बजे, 2 बजे, मे बी सुबह के 10 बजे. तो ऐसा क्यों कहा, ये तो फ्यूचर की इवेंट हो गई फिर, तो उसके लिए तो शैल विल का यूज करना चाहिए, पर फिर भी हमने सिंपल प्रेजेंट लिया. व्हाई, बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ द फिक्स टाइम टेबल. एंड क्यों फिक्स टाइम टेबल है तो क्या हो गया, तो ये हुआ कि वो रिपीटेड एक्शन में जाएगा. ठीक है, तो रिपीटेड एक्शन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो ये जैसे हफ्ते में 3 दिन आती है, मंडे आती है, वेडनेसडे आती है, फ्राइडे आती है, तो मंडे फ्राइडे वेडनेसडे फ्राइडे का इसका एक शेड्यूल हो चुका है, फिक्स टाइम टेबल, उतने टाइम पे वो आती ही है, हर बार रिपीट होती है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है. ओके, सो द सेम वे और स्कूल, सो द स्कूल स्टार्ट्स एट 7 AM. तो इसका भी एक फिक्स टाइम टेबल है, इतने बजे ये, ऐसा नहीं होता कि आज भी 7 बजे 7 o'clock हुआ तो कल प्रिंसिपल 8 बजे उठा था तो 8 बजे स्कूल चालू, ऐसा नहीं होता है. ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ द फिक्स टाइम टेबल, दो इट इज अ फ्यूचर. अगर आप यहाँ पे अभी कहीं संडे है, कहीं घूमने गए और कहीं आपको कोई मिल जाता है और पूछता है कि भाई आपका स्कूल कितने बजे स्टार्ट होता है, तो यू विल नेवर से दैट माई स्कूल विल स्टार्ट, यू विल ऑलवेज से दैट माई स्कूल स्टार्ट्स. ओके, तो एट दैट टाइम यू आर इन द गार्डन और समवेयर एल्स इन द शॉपिंग मॉल, समवेयर outside the school,
but still you will be using simple present tense for showing the fixed timetable. Okay, so after this, the next and the last use of the simple present tense is it is used for narrating story or incident. Generally what happens whenever we want to share the stories, okay, and it is related to past, we will be using simple past tense. Like there was a king and he used to live in this and this, he had many courtiers and this and that. So we are using like v2 form and was, were and had and all these verb forms which shows the past tense. But it is not compulsory that we have to write in simple past tense only. If we want to make it very effective, we can use simple present tense also. Like here I have used, Hank is a cowboy, he lives on a farm, he has a horse named Ginger. So ये हम मतलब डिस्क्राइब कर रहे, नैरेट कर रहे हैं कि हैंक एक काउबॉय है, वो खेत में रहता है फार्म में, और उसका घोड़ा है जिसका नाम है जिंजर. हम कहते हैं ना कि श्री रामचंद्र ने धनुष उठाते हैं, फिर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, फिर उसको ये करते हैं. तो करते हैं मतलब अभी नहीं कर रहे या हर रोज नहीं कर रहे, ठीक है, पर इट्स द way to express the story or incident very effectively. So I hope guys all of you must have understood it well, and if you have any doubts you can write in the comment section. If you have not subscribed my channel yet, please subscribe it. Thank you.